بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہندوستانی مسلمانوں کے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا، نئی دہلی دورے کے بعد امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ انڈیا اور امریکہ نے پارٹنرشپ مضبوط کرنے سے کیا اتفاق، لائیڈ آسٹن نے کہا انڈیا اور چائنا جنگ کی دہلیز پر نہیں تھے۔ عمران خان کووڈ پازیٹیو، یورپ میں کیسز بڑھنے لگے، فرانس اور پولینڈ میں جزوی لاک ڈاؤن۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 40,000 سے زیادہ ہو گئے، ایمز ڈائریکٹر نے کہا ویکسین سے 10 مہینوں تک حفاظت حاصل ہوگی۔ ریاض میں آرامکو سائٹ پر حوثیوں کا حملہ، GCC ملکوں نے کی مذمت، سعودی عرب نے ایران پر اٹھائی انگلی۔ امریکہ مئی تک افغانستان سے فوجیوں کو واپس بلائے گا، طالبان کو ہے امید۔ طیب اردوان حکومت گھریلو تشدد سے عورتوں کو نہیں بچائے گی، 2011 کا سمجھوتا توڑ دیا گیا۔ انگلینڈ کے بلیک برن میں عظیم الشان مسجد بنائی جائے گی، مقامی کونسل نے منظوری دے دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کووڈ-19 پازیٹیو پائے گئے ہیں، وہ پازیٹیو آنے کے بعد کوارنٹین ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے ایک ایڈوائزر فیصل سلطان نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ عمران خان نے 2 دن پہلے یعنی 18 مارچ کو ہی کورونا وائرس سے بچاؤ کا پہلا ٹیکہ حاصل کیا تھا۔ عمران خان نے کچھ دن پہلے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ تمام کووڈ اصولوں پر عمل کریں۔ ایک دن پہلے انہوں نے مالاکنڈ کا دورہ کیا تھا اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا تھا۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بات فی الحال صاف نہیں ہے کہ عمران خان کیسے وائرس کا شکار ہوئے۔ پاکستانی عہدیداروں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط سے رہیں ورنہ صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسز بڑھنے سے ہاسپٹل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور یہ صورتحال تکلیف دہ حد تک جا سکتی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے عوام سے کہا کہ وہ پرہجوم مقامات پر نہ جائیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شروع ہوئی ہے۔ پچھلے روز تقریباً 4,000 کیسز سامنے آئے۔ صرف دارالحکومت اسلام آباد میں 700 سے زیادہ کیسز پائے گئے۔ پازیٹیو آنے والوں کی شرح بھی بڑھ رہی ہے اور تقریباً 10% لوگ جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ پازیٹیو پائے جا رہے ہیں۔ فرانس اور پولینڈ میں پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں اور پارشل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ فرانس کے 16 علاقوں میں 21 ملین لوگ ان پابندیوں سے متاثر ہیں، جن میں پیرس بھی شامل ہے۔ فرانس میں تیسری لہر کا ڈر ہے۔ پولینڈ میں غیر لازمی کاروبار 3 ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جن میں دکانیں، ہوٹلز، کلچرل سینٹرز اور سپورٹس فیسلٹیز شامل ہے۔ فرانس میں نومبر کے بعد سے سب سے زیادہ ڈیلی کیسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔
जर्मनी में भी कोविड केसेस बढ़ गए हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने वार्निंग दी है कि मुल्क में इमरजेंसी और लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। ये केसेस एक ऐसे वक्त बढ़ रहे हैं जब कई यूरोपीय मुल्कों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, क्योंकि बाज़ ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि इस वैक्सीन से खून जमने की शिकायतें पैदा हो रही हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सऊदी अरब में कोविड-19 के एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने लोगों से अपील की है कि वो वैक्सीन हासिल करें। अब तक मुल्क में 2.7 मिलियन लोग टीका हासिल कर चुके हैं। पूरे सऊदी अरब में 500 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। मुल्क में जुमे के दिन 5 मौतें भी हुई। इसके अलावा 391 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। यूएई में 2100 के करीब नए केसेस रिकॉर्ड किए गए और 5 मौतें हुई। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कोरोना वायरस के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 41,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि एक दिन में 40,953 केसेस पाए गए। ये पिछले 111 दिनों में एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। इससे पहले 29 नवंबर 2020 को 41,810 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटों में 188 मौतें भी हुई। इस तरह इंडिया में मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। एक्टिव केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। फिलहाल मुल्क में 2,88,394 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशंस हो चुके हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में तमाम लोगों को वैक्सीन देना मुमकिन नहीं है। एनसीपी रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोले के एक सवाल का जवाब देते हुए पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि साइंटिफिक एतबार से मुल्क के हर एक शख्स को वैक्सीन देना जरूरी नहीं है और तरजीही ग्रुप्स को वैक्सीन देना ही सही तरीका है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड वैक्सीन से 8 से 10 महीनों या उससे ज्यादा वक्त तक हिफाजत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अब तक वैक्सीन की वजह से कोई बड़े साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट की सियासत की शुरुआत यमन से। कई मुल्कों ने जुमे को सऊदी अरब के दारुल रियाद में एक ऑयल रिफाइनरी पर यमन से हमले की मजम्मत की है। जुमे को सुबह 6:05 पर यह हमला किया गया था, जिसके नतीजे में आग लग गई। जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल ने इस ड्रोन हमले की मजम्मत की है। बताया गया है कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और पेट्रोलियम सप्लाई मुतासिर नहीं हुई। जीसीसी सेक्रेटरी जनरल नायब फलाह मुबारक अल हजराफ ने कहा कि जीसीसी मुल्क सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और सऊदी अरब की तरफ से किसी भी जवाबी कार्रवाई की तायद करते हैं। जीसीसी चीफ ने कहा कि खलीजी मुल्कों की तंजीम इस तरह की दहशतगर्दी और सबोताज की कार्रवाइयों को रोकने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का साथ देगी। अरब लीग ने भी हमले की मजम्मत की और कहा कि दुनिया को चाहिए कि वो अलहूसियों और उनके पीछे छुपे लोगों पर दबाव डालें ताकि वो इस तरह के हमले रोकें। अरब लीग ने यह भी कहा कि ऐसे हमलों से सूरत हाल और पेचीदा हो जाएगी और यमन बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में रुकावटें पैदा होंगी। सऊदी अरब में फ्रांस के सफीर ने हमलों की मजम्मत की। यूएई की वजारत खारजा ने इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया और कहा कि यह हमले आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। वजारत ने कहा कि यूएई और सऊदी अरब एक साथ खड़े हैं और सऊदी अरब को कोई भी खतरा हो तो इसे यूएई के लिए खतरा समझा जाएगा। बहरीन की वजारत खारजा ने ईरान की मदद रखने वाले हूसियों के हमले की मजम्मत की और कहा कि ये आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अरब पार्लियामेंट ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दुनिया को इन हमलों के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। अमेरिका ने भी ड्रोन हमले की मजम्मत की और कहा कि इससे एनर्जी सप्लाई मुतासिर होगी। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले ये जाहिर करते हैं कि इन लोगों को सिविलियन आबादी की हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। कुवैत ने सऊदी अरब से यकजहती का इजहार किया। यमन की हादी हुकूमत ने कहा कि ये मारीब, हुदैदा और ताइज में हूसी जराइम का फैलाव है। हादी हुकूमत ने कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरह के दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए कार्रवाई करे। इजिप्ट ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे सऊदी अरब और दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए खतरा करार दिया। अफ्रीका के मुल्क जिबूटी ने भी हमले की मजम्मत की। यमन के अलहूसियों ने रियाद पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें आरामको रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इस ड्रोन से 6 बम जुड़े थे। अलहूसी फौज के तर्जुमान याहिया सारी ने कहा कि जब तक सऊदी अरब की जारहियत बरकरार रहेगी और नाकाबंदी जारी रहेगी, इस तरह के हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने सिविलियन से कहा कि वो फौजी मकामात और इम्कानी टारगेट से दूर रहें। हूसियों के तर्जुमान ने यह भी कहा कि खमीस मुशैद में किंग खालिद एयरबेस पर हमला किया गया। अब तक इस मकाम को कई बार निशाना बनाया गया है। इस दौरान
सऊदी इत्तेहाद ने कहा है कि खमीस मुशैद पर हमलों को रोका गया। सऊदी अरब के एक वजीर आदिल अल जुबैर ने कहा कि बाइडेन हुकूमत में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी मजबूत हैं और उनके कई पहलू हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान 80 साल से मजबूत ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, हमारे माशी मफादात जुड़े हैं, हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, हम खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन हो या लबनान, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान हो या इंडिया पाकिस्तान तनाव कम करने का मामला हो या सूडान या लीबिया का मामला हो या बोको हराम से लड़ाई का मामला, हम मिलकर काम करते हैं। आदिल अल जुबैर ने कहा कि मेरे ख्याल में अमेरिका की नई हुकूमत ने ये बात साफ कर दी है कि ईरान को न्यूक्लियर समझौते पर वापस आना पड़ेगा और न्यूक्लियर सरगर्मियां रोकनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर डील में बास तब्दीलियां चाहते हैं। सऊदी वजीर ने कहा कि आरामको साइट्स पर हालिया हमलों का ताल्लुक ईरान से है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में जो हमले किए गए हैं, जो मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरे हैं, वो ईरान में बने हैं। अलहूसियों को दहशत गर्दों की लिस्ट से निकालने के अमरीकी फैसले के बारे में उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में अपने दोस्तों पर अपने ख्यालात साफ कर दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यमन मसले का सियासी हल निकाला जाएगा। आदिल अल जुबैर ने सऊदी अरब के इंसानी हुकूक रिकॉर्ड का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हम अरब पहल की बुनियाद पर इसराइल फ़लस्तीन मसले के दो रियासती हल के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीका ने यमन के सना में एक डिटेंशन सेंटर में आग लगने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा किया है। इस डिटेंशन सेंटर में अफ्रीकन इमिग्रेंट्स थे और आग से दर्जनों लोग हलाक हुए। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तानी मुसलमानों के इंसानी हुकूक का मसला उठाया, नई दिल्ली दौरे के बाद अमरीकी वजीर दिफा का बयान। इंडिया और अमेरिका ने पार्टनरशिप मजबूत करने से किया इत्तेफाक। लॉयड ऑस्टिन ने कहा इंडिया और चाइना जंग की दहलीज पर नहीं थे। इमरान खान कोविड पॉजिटिव, यूरोप में केसेस बढ़ने लगे, फ्रांस और पोलैंड में जुज़वी लॉकडाउन। इंडिया के डेली कोविड केसेस 40,000 से ज्यादा हो गए। एम्स डायरेक्टर ने कहा वैक्सीन से 10 महीनों तक हिफाजत हासिल होगी।
रियाद में आरामको साइट पर हूसियों का हमला, जीसीसी मुल्कों ने की मजम्मत, सऊदी अरब ने ईरान पर उठाई उंगली। अमेरिका मई तक अफगानिस्तान से फौजियों को वापस बुलाएगा, तालिबान को है उम्मीद। तैयब एर्दोगान हुकूमत घरेलू तशद्दुद से औरतों को नहीं बचाएगी, 2011 का समझौता तोड़ दिया गया। इंग्लैंड के ब्लैकबर्न में अजीमुशान मस्जिद बनाई जाएगी, मकामी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को कतर की हुकूमत ने कतर में काम करने वाले तमाम वर्कर्स के लिए कम से कम $275 की माहाना तनख्वाह पर अमल शुरू कराया है। यह कानून घरेलू मुलाजमीन के लिए भी लागू होगा। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। तालिबान ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका मई तक अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुलाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान में इस्लामी कानून बहाल करने का भी अज़्म किया। मॉस्को में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस के बाद तालिबान ने एक बयान में ये बात कही। तालिबान लीडर सोहेल शाहीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमरीकियों को जाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने तालिबान के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत अमरीका 1 मई तक अफगानिस्तान से अपने तमाम सिपाहियों को वापस बुलाने वाला था, लेकिन बाइडेन हुकूमत ने कहा है कि ये मुमकिन नहीं है। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, रशिया, चाइना और पाकिस्तान के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया और अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से कहा कि वो खून खराबा रोके। अफगानिस्तान में एक आरजी हुकूमत बनाने की कोशिशें हो रही हैं जिनमें तालिबान को भी शामिल किया जाएगा। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम लागू करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि क्या आरजी हुकूमत इस पहलू को अहमियत देगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या तालिबान इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। रशिया, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खून खराबा ख़त्म करते हुए अच्छा माहौल पैदा किया जाए। अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि उन्होंने हिंदुस्तानी वज़ीरों के साथ अपनी मुलाकातों में इंसानी हुकूक के मसाइल पर बातचीत की। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने, जो इंडिया के दौरे पर हैं, बताया कि उन्होंने मुल्क में अक़लियतों के इंसानी हुकूक के बारे में हिंदुस्तानी वज़ीरों से बातचीत की, क्योंकि दोस्तों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह के मामलात पर बातचीत करते रहें। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इंसानी हुकूक, ख़ास तौर पर नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम अक़लियतों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में बातचीत की है, जनरल ऑस्टिन ने कहा कि मुझे उनसे बातचीत का मौका नहीं मिला, यानी इस बारे में बातचीत का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने कैबिनेट के दूसरे अरकान से इस बारे में बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा पार्टनर है और उसकी पार्टनरशिप की हम कदर करते हैं। मेरे ख्याल में पार्टनर्स को इस तरह के मसाइल पर बातचीत करनी चाहिए और हम आसानी से ऐसी बात कर सकते हैं और बामकसद तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ऑस्टिन के इंडिया दौरे से पहले अमेरिका में कई सेनेटर्स और कांग्रेसमैन ने मुतालबा किया था कि लॉयड ऑस्टिन अपने इंडिया दौरे के दौरान इंसानी हुकूक के मसाइल उठाएं। ये मुतालबात CAA, NRC, गद्दारी कानून के हद से ज़्यादा इस्तेमाल और किसानों के एहतजाज के पस मंज़र में किए गए। इंडिया और अमेरिका ने अपनी पार्टनरशिप और मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉयड ऑस्टिन और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान दिल्ली में मुलाकात हुई, जिसमें इंडिया पैसिफिक के इलाके और दूसरे मकामात पर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया गया। अमरीकी वजीर दिफा ने एक ऐसे वक्त ये दौरा किया है जब कुछ दिन पहले क्वाड मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस में चाइना के खिलाफ मुल्कों का इत्तेहाद बनाने पर गौर किया गया। लॉयड ऑस्टिन 3 मुल्कों के दौरे पर हैं। इससे पहले उन्होंने जापान और साउथ कोरिया का भी दौरा किया। ये बाइडेन हुकूमत के किसी आला ओहदेदार का पहला बैरूनी दौरा है। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हमने कभी भी ये नहीं समझा कि इंडिया और चाइना जंग की दहलीज पर हैं। हाल ही में कई महीनों तक इंडिया और चाइना के दरमियान ईस्ट लद्दाख में तनाव पाया जाता था और दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने थी। लॉयड ऑस्टिन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने अपनी बातचीत के बाद उम्मीद जाहिर की कि 21वीं सदी में इंडिया और अमेरिका के दरमियान ज़बरदस्त पार्टनरशिप होगी। उन्होंने कहा कि बातचीत में कई डिफेंस समझौतों पर अमल के बारे में गौर किया गया।
ترکی ایک سمجھوتے سے باہر نکل گیا ہے جس کا مقصد عورتوں کے خلاف تشدد کو روکنا تھا۔ اس سلسلے میں ایک صدارتی حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کا یہ فیصلہ صدر طیب ایردوان کی پارٹی میں پرانے خیالات رکھنے والوں کی جیت ہے۔ 2011 میں استنبول کنونشن منظور کیا گیا تھا جس کے مطابق حکومت عورتوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے بعض سخت قدم اٹھانے کی پابند تھی۔ ان میں شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شوہروں کی زبردستی کو روکنے کا وعدہ بھی شامل تھا۔ اس کنونشن سے واپسی کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ طیب ایردوان کی ایک پارٹی نے پچھلے سال کہا تھا کہ وہ اس طرح کے قدم پر غور کر رہی ہے۔ امریکہ میں 2 امیر مسلم بھائیوں نے ایک زبردست مسجد بنانے کا فیصلہ کیا ہے جسے منظوری مل گئی ہے۔ یہ مسجد نارتھ ویسٹ انگلینڈ میں بلیک برن کے مقام پر تعمیر کی جائے گی جس پر $5 ملین خرچ کیے جائیں گے۔ اس مسجد کے میناروں کی بلندی اور اس سے ہونے والے نوائز پولیوشن پر اعتراض کیا جا رہا تھا، لیکن مقامی کونسل نے ایک سمجھوتے کے بعد مسجد کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنایا گیا ہے جس کا نام عیسیٰ فاؤنڈیشن ہے۔ عیسیٰ فاؤنڈیشن نے کہا کہ وہ ان مسائل کا خاص خیال رکھے گی جو مسجد پر اعتراض کرتے ہوئے اٹھائے گئے ہیں، جس کے بعد کونسل نے یہ اجازت دی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش کنگز ماون ارینا آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنس پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز ماون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر۔ پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہندوستانی مسلمانوں کے انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھایا، نئی دہلی دورے کے بعد امریکی وزیر دفاع کا بیان۔ انڈیا اور امریکہ نے پارٹنرشپ مضبوط کرنے سے کیا اتفاق، لائیڈ آسٹن نے کہا انڈیا اور چائنا جنگ کی دہلیز پر نہیں تھے۔ عمران خان کووڈ پازیٹیو، یورپ میں کیسز بڑھنے لگے، فرانس اور پولینڈ میں جزوی لاک ڈاؤن۔ انڈیا کے ڈیلی کووڈ کیسز 40,000 سے زیادہ ہو گئے، ایمز ڈائریکٹر نے کہا ویکسین سے 10 مہینوں تک حفاظت حاصل ہوگی۔ ریاض میں آرامکو سائٹ پر حوثیوں کا حملہ، GCC ملکوں نے کی مذمت، سعودی عرب نے ایران پر اٹھائی انگلی۔ امریکہ مئی تک افغانستان سے فوجیوں کو واپس بلائے گا، طالبان کو ہے امید۔ طیب ایردوان حکومت گھریلو تشدد سے عورتوں کو نہیں بچائے گی، 2011 کا سمجھوتا توڑ دیا گیا۔ انگلینڈ کے بلیک برن میں عظیم الشان مسجد بنائی جائے گی، مقامی کونسل نے منظوری دے دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔